Hello everyone. Today we are going to revise electrostat or Coulomb force. So electro means charge and a stat means rest. So study of charge at rest is called electrostatic. So as we have studied that charge is a fundamental physical quantity due to which different electrical or other related effects are produced in a matter. Unit of charge is coulomb represented by C, and this CGS unit is electrostatic unit of charge ESU or a stat coulomb. Basically charge is nothing but its electron. If any body develops charge, let us say a body develops negative charge, it means that it has more electron than proton. More electron than proton. Similarly, if a body develops positive charge, it means that it has less electron than proton. So basically, charge is loss of electron or gain of electron by any body to develop positive and negative charge. This development of charge can happen by three different ways. First is by physical contact, friction and induction. Let us say when we bring a charged body, positively charged, in contact with this neutral body, then what will happen? This positive charge means that there is a less number of electron. There is less number of electron. Neutral body, so equal number of electron and equal number of proton. So from here, this electron will move here. So it will become, let us say 2 electrons move, so it will become neutralize this 2 positive charge, it will remain positive, and here 2 electrons becomes less, so it becomes positively charged. Similarly, if a neutral body is there and positively charged molecule comes in contact with this, then electron will transfer from here to here. Neutral body, so equal number of positive and negative charge. If electron will go from here to then more negative charge, so it becomes negatively charged. Now another method is by friction. As we know that we have seen in our childhood that हम लोग जब कंघी को रब करते थे बाल में, तो it can attract pieces of paper. It's because while during the physical contact or during the friction, one body loses electron to become positively charged and another gain electron to become negatively charged. So basically when we will rub two body with each other, one will lose electron and one will gain electron. So this will become negatively charged and this will become positively charged. Another important method to create charge is induction. This is important or relevant because in this case we can produce charge on any body without any physical contact. Let us say this is a neutral charge body, neutral, and we have to create charge on this without any physical contact. So what we will do, let us bring a positively charged molecule near this. So as we know, this neutral means equal number of proton and equal number of electron. So as we will bring this
positively charged body closer to this neutral body, this electron will get attracted to this body. We are not physically touching it, but still it is in surrounding. Electron will get attracted and positive charge will get repelled, and it will arrange accordingly this. Now what we will do, we will connect this with earth. So there is a deficiency of electron here, so electron will move here and will neutralize these charges, and this body will become negatively charged. So using induction method, we can create a charge opposite to the charge to the material which we have bring closer to this neutral body. So there is a positively charged, here is a negatively charged body developed. Similarly, if we will bring negatively charged body, it will become positively charged body. Now from here you can see that development of charge is basically nothing but loss or gain of electron. So from this one concept which comes is that quantization of charge. Quantization of charge say that charge cannot be a continuous spectrum. It is a discrete packet of energy of electron. In simple word मैं बोलूँ तो कि जो चार्ज डेवलप होगा किसी भी बॉडी पे, वो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से हो सकता है, या जो गेन भी होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस से होगा. और हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो कोई भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो 1 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या 3 इंटू इतना होगा. So this is called quantization of charge. Charge developed on any body is integral number of charge of electron. So आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताओ कि 11 इंटू 3.3 इंटू 10⁻38 चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप हो सकता है कि नहीं. हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में चार्ज डेवलप्ड कितना हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ये चार्ज डेवलप पूछ रहा है कि इतना चार्ज डेवलप हो सकता है कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए नीचे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19. यदि इसका n का वैल्यू यदि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो ये चार्ज डेवलप हो सकता है. यदि 1.2 आता है, 1.5 आता है, 1.7 आता है, तो ये चार्ज डेवलप नहीं हो सकता. क्योंकि कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नहीं, 1 निकलेगा, या 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 2.5 नहीं निकलेगा. सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इससे इस तरह का न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि ये चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है. नाउ ये जो चार्ज है वो एडिटिविटी दिखाता है. इसका मतलब क्या कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो यदि किसी बॉडी को हम 3 कूलम दिए, इधर से आपने 5 कूलम दिया, तो अब किस मेथड से दे रहे हो, किस पॉइंट पे दे रहे हो, डजंट मैटर. कोई पूछता है आपसे कि इस पे कितना चार्ज है, तो 3 + 5 8 कूलम. मतलब वेक्टर जैसा, इसको अलग डायरेक्शन से नहीं लेना देना. इट्स सिंपल दैट 3 + 5 8 कूलम, इस पे फोर्स है. सिमिलरली कंजर्वेंस जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. सिमिलरली चार्ज इज कंजर्व्ड. इट मींस दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. लेट अस से एक आइसोलेटेड सिस्टम है, 2 न्यूट्रल बॉडी है, आपने आइसोलेटेड सिस्टम है, आपने इस पे
क्रिएट चार्ज किया -3 कूलम, तो पहले इस पे कितना था, जीरो था, इस पे -3c कूलम क्रिएट किया इस बॉडी पे, तो इस पे खुद ब खुद +3c कूलम होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात की इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, अब इस पे लेटेस्ट से इस आइसोलेटेड सिस्टम में 2 कूलम है, इसको आप 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दीजिए, या इसको आप मून से देखिए, या इसको आप बिल्डिंग से देखिए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 कूलम है तो 2 कूलम है। इट मींस इनर्शिया ऑफ फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आप किस मोशन में देख रहे हैं इसको फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जल्दी से कूलम्स लॉ पे चलते हैं, क्योंकि ये सब मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ रिवीजन में। सो कूलम्स लॉ क्या बोलता है आप लोग जानते हैं कि दो चार्जेस है Q1 Q2, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो F K Q1 2/r² लगेगा। इसका यदि वेक्टर फॉर्म का बात करते हैं, फोर्स जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन 1 और 2 ड्यू टू 1 जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पॉइंट फोर्स है, दो पॉइंट के बीच में लगता है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो होगा, इसका वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 4 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। सो यदि इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 9 × 10⁹ बाई एप्सिलॉन r आता है। अब क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू तो फिक्स है, पर ये एप्सिलॉन r क्या है, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं ऑफ ए मीडियम। किस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ, पानी में रखा हुआ है, हाइड्रोजन में रखा हुआ है, उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। ये जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम एयर का है तो है, ये इसका वैल्यू फिक्स है, पर ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किस मीडियम में आपका चार्ज पार्टिकल रखा हुआ उस पे डिपेंड करेगा। तो जो एप्सिलॉन r को जो डिफाइन करते हैं वो F/FM करते हैं। ये क्या F/FM, ये लेटेस्ट से दो चार्ज पार्टिकल लिए, उसको एयर में रखे या वैक्यूम में रखे, उसके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, ये फॉर्मूला से कि Q1/K2r² से, तो उसका जो फोर्स है उसी दो चार्ज पार्टिकल को उतना ही डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, जैसे वाटर में, वहां पे जो फोर्स लगेगा उसके रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या, फोर्स इन द वैक्यूम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन व्हेन कीप्ड इन द अनदर मीडिया। तो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर एयर क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एयर के लिए 1 हो जाएगा, तो अब और किसी अदर मीडिया के लिए यदि ईआर का वैल्यू ज्यादा है, ईआर का वैल्यू कुछ ज्यादा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं फोर्स 2/1 × 9⁹ Q1 Q2/r²। यहाँ ER लिख सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये ER एयर के लिए 1 है, किसी दूसरे मीडिया के लिए 2 रहेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी, किस मीडिया में आप रख रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। यदि वाटर में रख रहे हैं उसका 2 है तो फोर्स उस मीडिया में कम हो जाएगा। इट मींस दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मीडिया in which it is kept, depending on its
रिलेटिव परमिटिविटी एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो फोर्स कम जाएगा। तो एयर में यदि 1 है, जितना फोर्स है उसी को यदि पानी में रख दीजिएगा, उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो उसमें फोर्स हाफ हो जाएगा। ये क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। ये हम लोग यहाँ पे हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैं बता चुका हूँ कि किसी पोजीशन से उसका डिस्टेंस मालूम है। जैसे पे कि आप यहाँ पे अर्थ पे हैं और मून पे दो चार्ज पार्टिकल है, उसके बीच में आप फोर्स पता करना चाहते हैं, तो आपको अपने और उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस मालूम है। लेटर से आप यहाँ पे हैं अर्थ पे, आप यहाँ पे हैं, आपको ये वाला डिस्टेंस मालूम है, ये वाला डिस्टेंस मालूम है, ये वाला डिस्टेंस मालूम है। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको हम लोग R2 बोलते हैं। और आपको पता करना है इस फोर्स ऑन टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना है। ठीक है, तो इसी को पोजीशन वेक्टर में बोलते हैं। इस केस में रिलेवेंट है, आप एग्जांपल समझे कि आपको दो चार्ज पार्टिकल का ही मालूम है, जिससे आपको डिस्टेंस उसका मालूम है, पर पता करना है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे कि Q1 E2/r²। पहले वेक्टर का कोई कॉलम नहीं है इसमें, Q1 Q2 y डिस्टेंस, इसका वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं कि इसका क्या होगा। तो ये जो r यहाँ पे है कौन सा डिस्टेंस है, चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं। वो कर देते हैं, इसको a कर देते हैं, इसको b कर देते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इसको हम लोग कुछ और से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेटर से ए बी कर देते हैं, ए बी डायरेक्शन कर देते हैं। ठीक है, कोई कॉलम नहीं है, इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग दे देंगे ए बी डायरेक्शन दे देंगे इसका। खुश है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये R2 क्या है। R2 भी तो आपका ए बी है ना, तो इसको हम लोग बदलते हैं के, चलिए यहीं पे बदल देते हैं, आपके लिए टाइम बचेगा। ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए बी लिखा, इस पे मॉड लगाया, मॉड लगा, डायरेक्शन चला गया, स्क्वायर है ये। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, तो किसी तरह इस डिस्टेंस को हम लोग इस डिस्टेंस में बदल सकते हैं। कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, आप अच्छे से याद करिएगा। तो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अब देखिए इसका डायरेक्शन, ऐसा है, ऐसा है, ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है। देख रहे हैं डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो जिसका डायरेक्शन सीधा होता है ट्रायंगल लॉ में, जैसे R1 AB = R2, ये समझा कैसे लिख रहे हैं हम लोग? हम लोग क्या लिख रहे हैं कि R1 वेक्टर AB वेक्टर = R2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से हम लोग इसको बदल सकते हैं। AB क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, R2 - R1। तो हमारा काम आसान हो गया। AB जो डिस्टेंस नहीं मालूम था, जो दो डिस्टेंस मालूम है, उसमें ये बदल गया, R2 - R1 में हो गया। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे इसको, ये Q1 Q2 y R2 - R1 का स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे Q1 Q2 AB को हम लोग लिख सकते हैं
R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं इंटू R2 माइनस R1 का डायरेक्शन लिख सकते हैं ना। तो हम लोग ने इसके लिए क्या किया, ऊपर नीचे R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब। हम लोग ने सिंपल क्या यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये भी क्या था, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए बी को R12 लिख सकते हैं। तो ये R12 क्या है, R2 माइनस R1, ऊपर नीचे हम लोग ने R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये ऐसे रहेगा। आपको इसमें भी फिर से मैं आपको करके बता सकता हूँ। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे R बाई R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर में बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले था ही, हम लोगों ने मैग्नीट्यूड से कर दिया तो वेक्टर में बदल गया, नीचे मैग्नीट्यूड R क्यूब होगा। तो हम लोगों ने सेम यहाँ पे किया है, डायरेक्शन यहाँ पे था पहले, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बदल जाएगा क्या में, वेक्टर में बदल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब मल्टीप्लाई किया तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये Q1 Q2 ये आपका वेक्टर में बदल गया R12 और नीचे R2 माइनस R1 का क्यूब हो गया। तो हम लोग ने सेम किया है कि यहाँ पे ऊपर में जो यहाँ पे R2 स्क्वायर है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी देखिए ये तो था ही पहले, ये तो पहले था ही, ठीक है, ये पहले था, ऊपर नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया किससे, R2 माइनस R1 से, तो ये आ गया, ठीक है।